evening, sir. Good evening, Somek. Somek, introduce yourself. Thank you for giving me this opportunity. My name is Soumya Patnaik. I am basically from Odisha, but currently I am living in Pune. I have done my BE Tech from Odisha only from 2016. After that, I have worked for a total of 5 years. 2 years in a factory, in a light manufacturing factory, and 3 years as a QA/QC engineer at site. Currently, I am pursuing uh, BIM courses from Unix Civil Foundation. My short-term goals are getting a job in this, getting a job into this BIM industry, and my long-term goal is to achieve a good position in BIM industry, and along with a good family, good friends and family life. Okay. What is civil engineering, Somek? In civil engineering, we try to engineer different kinds of material, like how to use material around us. How can we engineer them for our own purpose? Like how to engineer water for the betterment of our society, how to use materials for making concrete or making materials with different structures, how to use physical engineering and other properties of soil for better understanding the soil. So these are the things. What is BIM? So BIM is a process in which we create data-rich 3D models, which are like which are like 3D twins of the original building that we are going to create, and from that 3D models we can take out as much data as we need for our further use. Okay. What do you understand by green energy buildings? So in green energy buildings, we try to achieve as much carbon neutrality as we can. So in green buildings, we use passive lighting as much as we can. Like we use glass facades most of the time, and we try to use passive ventilation also. Like we prepare the plan, or we model, we design the building in such a way that it natural cross ventilation occurs without. So such things are used. Such steps are taken care so that we can achieve some carbon neutrality. Such buildings are known as green buildings. Okay. Just tell me in the steps 1D to 8D. Step wise 1 to explain. 8D. So these are the different dimensions of beam. 1D, 1D relates to the planning in which we investigate, like what is the site, what are the weather conditions, what are the regulations there. In 2D, we work on preliminary drawings, conceptual design, 2D drawings, and in 3D, in the third dimension, we create 3D models, which are of accurate dimensions. Then there comes 3.5D. In 3.5D mostly deals with the That documentation. that is LOD 350. That is different. Sorry, sir. Then there will be 4D. 4D is about time scheduling of the project. We schedule the various time. We schedule the time of the project. Necessarily in 5D, we uh, deal with the cost of the project. We do the cost scheduling. In 60, in 60 we do sir energy analysis. In six dimension we do energy analysis. So green buildings can come under this dimension. In sustainability. In 7D, it is like, sir, when the building is constructed totally, it basically pertains to asset management as built conditions. And 8D, sir, is a new concept uh, that is related to safety parameter. Service after construction. The service Okay. means that complete. After that, whatever services we need to provide. Okay. 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 Sir. Okay. Okay. Good. And Somek, why should I hire you? Sir, I have a good knack about softwares, and I enjoy learning about them. So recently, I am doing my internship where I have learned different softwares like AutoCAD, Revit. In Revit, all the verticals like structure, architectural, MEP, and currently I am learning Tekla, and I take great interest in learning new software. So even if I am working in a company, then there also I will be learning new things every day,
And also, sir, I'm a team player. I believe in team building, and I like to help other teams and try to achieve our goal as a team, sir. Very good. Nice submit. Now, Khijar, very good. Khijar, Khijar Khan is not ready, I think. Lokesh, Yes, good evening, sir. okay, ready, is ready. Khijar, introduce yourself. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Muhammad Khizr Khan, and I'm basically from Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, and I have been BTech from BTech Civil Engineering. Speak loud. Okay, okay, sir. I have done BTech in Civil Engineering from Shri Ram Group of Colleges, Muzaffarnagar. And sir, there are my two term of goals. My short-term goal is take an opportunity in recruitment firms such as you. And my long-term goal is to get a reputed position in BM engineering. Thank you, sir. वो जो मैंने स्लाइड दिया था बीएम का, वो तुमने प्रिपेयर नहीं किया ना, इंट्रोडक्शन का नहीं सर, स्लाइड? नहीं उसमें से तो नहीं पढ़ा सर मैंने। मेन तो वही है ना, तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन खराब हो गया, तुम्हारा मार्क्स खराब हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फाइल फॉर्मेट्स इन रेविट? RVT, व्हाट आर मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप्स. डॉट RVT सर, एंड डॉट RFA फाइल फॉर्मेट के लिए सर, एक ड्रॉप फॉर्मेट के लिए डॉट RVT। एंड तो सुना दो ही देखे सर अभी। अभी तो वही देखा है ना. टाइप्स ऑफ एरे इन रेविट, लास्ट क्वेश्चन. रेविट में सर दो टाइप का एरे, रेडियल एरे और लीनियर एरे। श्योर? सर रेडियल और Linear. रेडियल। चलो एक क्वेश्चन और बता दो. टाइप्स ऑफ मिरर इन रेविट. मिरर इन रेविट सर, टू टाइप ऑफ मिरर इन रेविट। एक होता है सर, नाम तो नहीं याद आ रहा सर, यूज तो किया है। ओके, नो इशू, बट यू आर नॉट प्रिपेयर अप टू द मार्क. ठीक है, जो सोमेक अप टू द मार्क आ चुके हैं, नॉट परफेक्ट, अप टू द मार्क, तो थोड़ा सा और वर्क करो इस पर. ठीक है किसी वाला तो इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन फर्स्ट. पढ़ लो। ठीक है, ठीक है। ओके, लोकेश पाटिल. Good evening, sir. गुड इवनिंग लोकेश. लोकेश, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Sir, first of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Lokesh Patil. I am basically from Nasik, Maharashtra. I have completed my graduation in 2022 in BE Civil from Savitribai Phule University, and currently I am doing internship at Unique Civil Training Institute. And in internship, I am learning various softwares like AutoCAD, Revit, Architecture, Structure, MEP, ECLA, BIM 360, etc. And talking about my experience in software, in AutoCAD, I have knowledge of creating floor plan, section elevation, and site plan, layout plan, etc. And in Revit, I have knowledge of creating 3D models, its rendering, walkthrough, etc. And in structure, I have knowledge of modeling and detailing the structure. And talking about my experience in Tekla, currently I am learning this software, so I basically have a little bit of its knowledge, like simply modeling and detailing. And talking about my short-term goals, first of all, I want to get job in Beam company. And my talking about my long-term goal is to build my career in a BIM industry as Beam manager and have a good life. And talking about my strengths, I am a goal-oriented person, hardworking, and able to work under pressure. That's pretty about myself. Okay, very good. What do you understand by BIM 360? What is BIM 360? Sir, BIM 360 is basically a work sharing based model in which various persons can work on a single model. Means, suppose you are a main owner of the project, so you assign the task to your some people who are below you, Correct. so that they can work on the model, and That's it. after That's it. completing That's model. it. Okay. I just want to know, you know or not? Point cloud. Sir, point cloud is a part of scan to beam process in which we can get data like XYZ format by using a laser scanning instrument, and then this data is transferred into recap, and in recap this data is formatted in .rcs or .rcp file, and Very then good. it's modeled in Revit.
Very good. What are the file formats in Revit? Last question you read. Sir, You read. there are four file formats. Basically, Yes. first is .rbt, Revit project file, .rfa, Revit family file, .rt, Revit template file, Revit project template, and .rft, Revit family template. एक्सलेंट. फर्स्ट टाइम मेरे बैच में किसी ने 8 नंबर स्कोर किया है, लोकेश ने किया. एक्सलेंट. वेरी गुड. ओके. वसुराज. Good evening, sir. गुड इवनिंग वसुराज. वसुराज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. First of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself, sir. Myself, Basavaraj Bedekar, sir. I am from Bagalkot district, sir, Karnataka. I have completed my Bachelor of Engineering in Civil Engineering from in 2019 from Rural Engineering College, Hulkoti, Gadag district, and Karnataka, sir. I am presently working as a quality control engineer, also doing the part-time internship in Unix Civil platform, sir. In that one internship, we are learning various softwares related to BIM industry, sir, like AutoCAD 2D, 3D, Revit, Tekla, Navisworks, BIM 360, like sir. In AutoCAD, I have created architectural sheets, which includes plan, section, elevations. In Revit, I have done the 3D modeling, rendering, walkthrough, site plan. Also, did the detailing in structures. Presently, I'm learning Tekla software. So, my short-term goal is to get a good job in reputed organization in beam industry. So, my long-term goal is to get the go for the better position in that organization. So that's Suraj. all about myself. Okay, great. Suraj, there is a bonds in my company for 2 years. Are you comfortable for 2 year bonds? For 2 years, I will be okay with that. Also. Okay. What's your salary expectations? As per industry norms. Okay. My company's work is sometimes to relocate everywhere in India. Are you comfortable to relocate? Yes, I love to travel so that I can relocate easily. Great. Okay. Okay, very nice. And what do you understand by LOD 350? LOD 350 is the construction documentation process in which we will document the which related to the particular project. Okay, very good. Why should I hire you? Because I'm a quick learner, sir. I can learn the new things easily. Also, I'm learning new technologies. I want to learn. If I join the organization, also, sir, I will love to learn new technologies and opt for that. So, एक्सेलेंट. परफेक्ट हो आप बसवराज. आप बीम के लिए एकदम परफेक्ट हो. मैं स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो एकदम अलग अलग डोमेन हो जाएगा, पर इसमें आप एकदम परफेक्ट हो. तो गुड. thank you, sir. ओके. प्रणय. प्रणय कदम. आफ्टर दैट पॉल. प्रणय. Hello. यस प्रणय. Yes, sir. Good evening. प्रणय, गुड इवनिंग. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रणय. Yes, sir. My name is Pranay. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Pranay Kadam. Basically, I am from Mumbai, Maharashtra. I done my graduation from Saint John Engineering Technical Engineering College from Palghar, Maharashtra. Yes. Currently, I am doing BIM course from Unix Civil Institute Training Institute. I have 2 year site experience. Recently, I left my site job, site engineer job. So now I am pursuing BIM internship in Unix Civil. Okay, very Yes, good. And can you just tell me that there are different type of LODs? So can yes, you just explain all the LODs? yes, sir. There are different type of LODs in BIM industries like LOD 100, LOD 200, LOD 300, 350, 400, and 500. In India, there LOD 500 uh, means LOD 100 to LOD 500 are there. In LOD 100, conceptual designing we done and working on site condition and general information about site. And LOD 200, we design actual 2D drawings. Yes, and then we then we go in LOD 300.
we design detailed drawing, means intellectual 3D drawings. Uh, Intellectual 3D drawing where we can uh, detail design and information about drawing. In LOD 350, construction documentation are done. Different types of documentation are done. In LOD 400, different type of fabrication, erection, site working are done. And LOD 500, uh, we build the structure or project, sir. Tell me something about yourself which is not mentioned in your resume. Okay. I am फंस गया क्या? sir. ठीक है, कुछ ऐसा रखो अपने पास ऑलरेडी। यहाँ पर जितने लोग हैं लगभग सभी परफेक्ट ही है। ठीक है, हमें कुछ ऐसा रखना चाहिए अपने पास कि लाइक आई वॉज नॉट मेंशन अबाउट माई इन कॉलेज लाइफ। इन कॉलेज लाइफ आई वॉज लाइक क्या उसमें बनते हैं ना जो ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, क्या क्या Yeah, बोलते हो? yeah, ठीक है, sir. वो कुछ ऐसा बता दो कि मुझे थोड़ी पता है। Yes, ठीक है, sir. ये तुम कॉलेज में क्या, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था सर, मतलब चलो हाँ, जो किया था उसमें से ये वो नहीं था। ऐसे ही घुमा दिया जाता है कि सामने वाला ना, देखो जब इंटरव्यू में सामने वाला बैठता है उसका मेन टारगेट क्या रहता है ना, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लूज किया जाए। यस सर, यस सर। ठीक है, इंटरव्यूअर का काम है। मैं कॉन्फिडेंस लूज क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि सीधी सीधी बात है कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस लूज कर दूंगा तो तुम्हारा वो लर्निंग नहीं आ पाएगा जो मुझे चाहिए। लेकिन यस इंटरव्यूअर के माइंड में क्या रहता है, देखो इंटरव्यू जब तो कोई लेता है तो याद रखो कंपनी का एम्प्लॉई है ना। तो एम्प्लॉय को दो तीन चीज़ दिमाग में रहती है। एक तो ये रहता है कि हम दिखाएं कि हम, मैं सच्चाई बता रहा हूँ एकदम, कंपनी का जो एक्चुअली होता है, ठीक, हम लोग को भी होता था, हम दिखाएं कि हम बहुत टैलेंटेड है, पहली चीज़। इसका इसका एक ही तरीका है, जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसको इतना हैवी हैवी क्वेश्चन पूछो, इतना हैवी हैवी क्वेश्चन पूछो। कई बार ऐसा मैंने लोगों को देखा हुआ है कि उनको खुद आंसर नहीं पता वो क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। और यहीं पर हमें कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, आंसर थोड़ा सा भी पता है बता देना है। यस ठीक सर। है, ठीक जब कंपनी का ऑनर होगा ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। वो बताओ क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑनर को तुमसे कंपटीशन नहीं करना है, या उसको बिजनेस करना है, राइट? यस लेकिन जब एम्प्लॉय होगा ना, इतने नखरों वाले क्वेश्चन पूछते हैं, इतने नखरों वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे, तुम्हें ऐसा दिखाएंगे कि क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है कि उनकी खुद की भी सेटिंग्स होती है ना कंपनीज के अंदर की, यस सर। उनके खुद के एम्प्लॉय रखने हैं उनको। ठीक या है, थोड़ा सा तुमको लूज़ किया, किसी और को टाइट कर दिया, उससे सिलेक्शन दे दिया उसको। तो हमें यस परफेक्ट रहना पड़ेगा हर एंगल से। तो तुम्हें कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बता दो। कॉलेज का कुछ नहीं है तो तुम बता दो कि क्या बोलते हैं, मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था। ठीक है, आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, मुझे थोड़ी पता तुम कब खेलते थे, क्या खेलते थे ना। या बस थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके, बस और कुछ नहीं है इसमें। यस सर। ओके, चलो यस बाकी तुम्हारा ओवरऑल अच्छा है। यस। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके जी। नाउ पॉल, रोमियो पॉल, Good evening, sir. गुड इवनिंग पॉल। सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट मेंशन इन resume. Actually, my important point all I didn't mention in resume, but in terms of my personal hobby, personal activity, I not mention in resume. Okay, like what type of, just explain. Ma'am, sir, like my daily schedule routine, what can I do in my daily routine? My hobbies like sketching, drawing, etc. That's That not mentioned in your resume, right? yes. Okay, great, very good. Okay, Paul, in my company there is a 3-year bonds. ठीक है, will increase Yes, sir. will increase your salary. Okay, and Okay, sir. but the profile is not related to beams. Are you comfortable to do the job? Sir, I am very passionate about beam workflow, so that's why I am not comfortable with another. I'm not going to another work, another field, so that's why I'm not comfortable, sir. वेरी गुड। ठीक है, जब भी कोई तुम्हें कोई लालच देता है तो यू कैन से कि आई एम मच इंटरेस्टेड इन दैट ओनली, तो मुझे उसी में जाना है, तो मुझे इस तरीके का आप लॉलीपॉप मत दीजिए। Yes, ओके, sir. suppose I just hire you, Paul, and in your salary expectation, suppose your salary expectation is 30,000, I'll just hire you to 30,000, Okay, sir. and after 1 month you got new opportunities from different companies.
okay, and their offer is 35,000. Yes, sir. What will be your answer for that company? So first of all, in my starting career, I am not greedy to much expectation salary. In terms, I also give the opportunity to learn new things and and obtain the as much as possible in the knowledge. So that's why I am not switched my career in like 1 month, 2 months Correct. Very in good. different profile. What is the use of Tekla structures, Paul? The Tekla structure is mainly is for structural modeling and reinforcement detailing. Also, we can create modeling also, but main purpose is still structure modeling, detailing, etc. Sir. What is the use of organizer command in Tekla structures? Sorry, sir, I can't recall right now. Okay. So, in 1 meter cube, how many bricks? Sir, 500 bricks is required. 500 bricks. Okay. Yes, sir. How to calculate cement bags if we want to calculate in Revit architecture? In Revit architecture, we provide the estimations. So Yes, sir. in that estimation, we need to like put the formula for the cement calculation. Yes, sir. So what is the formula? Not remember. Sorry, sir. I actually forget the Okay, no formula. issue. Okay. Column is a compression member or tension member? Column is the compression members. Minimum dia bars, how much we can provide in column? 12 mm, sir. 12. In slab, In slab, 8 mm, sir. it's a minimum. Okay. And maximum in slab? Maximum is D by 8, sir. Overall depth by 8, sir. वेरी गुड, एक्सीलेंट. इसका मुझे लगा कि तुम नहीं बता पाओगे, बट तुमने बता दिया. बहुत बढ़िया. ठीक है, ओवरऑल सबका ही बेस्ट है. ठीक है, और मुझे तो अभी थोड़ा सा खिजर, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रणय तुम्हारा, थोड़ा सा पॉल. तो सौम्यक 7 पाए हैं. ठीक है, जो कि एक अच्छा स्कोर है, मतलब ही इज़ रेडी फॉर द एनी इंटरव्यू. खिजर गॉट 4 एंड लोकेश गॉट 8 और बसवराज गॉट 7, प्रणय गॉट 6 एंड पॉल गॉट 6. ठीक है, लगभग सबका अच्छा है. मेरा बीच में प्लान चल रहा है कि थोड़ा सा और आपकी प्रिपरेशन करवा दिया जाए कैट टेस्ट को लेके. ठीक है, कैट टेस्ट के लिए बहुत जल्दी प्लान करूँगा. एक मिनट खींचा, कैट टेस्ट के लिए बहुत जल्दी प्लान करूँगा. पर पहले कल आप एक छोटा सा पीपीटी, चाहे 4 पेज का ही बनाना. मुझे पीपीटी बनवाने में क्या मज़ा आएगा? मज़ा ये आएगा कि आप इंट्रोड्यूस करोगे चीज़ों को, एक्सप्लेन करोगे, तो आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल्स निकल के आएगी. उसको मुझे चेक करना है. जितना आपने मॉडल बनाया है उसी मॉडल का एक जस्ट सोचना कि अच्छा ये मॉडल किया था, इतना एरिया था, ये चीज़ें थी, 5-6 पेजेस का एक्सप्लेनेशन रख लेना. कल वो जस्ट एक्सप्लेन करना है सबको, और उसके बाद ही आगे चलेंगे. इस पर मैंने फिक्स कर रखा है कि सबको ही करना है, इसलिए सर्टिफिकेशन उसी को देंगे जो प्रेजेंट करेगा. तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम परफेक्ट से परफेक्ट हो जाए. और हमें क्या चाहिए? हाँ किजर, अब बोलो किजर. सर वो मेरे 4 इसलिए आए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था सर, आज कहना मैंने वो पढ़ा था. कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करो. ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लो. हाँ, नेक्स्ट टाइम कर लो. कि देखो, मॉक हम जानबूझ के तुरंत करते हैं, इमीडिएट एक्शन. क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल तो कभी भी आ सकता है ना, है ना. तो एवरी टाइम्स, ठीक है, वी रेडी फॉर एवरी टाइम्स. ठीक है, पीपीटी सेंड किया है. ओके, वेरी गुड. लोकेश ने पीपीटी सेंड किया है. ठीक है, और ओके, मैं चेक करता हूँ. और सभी लोग अपनी पीपीटीज को बनाना, 5 पेज 10 पेज का बनाना, जितना हो सकता है उतने का बनाना. बना के हमें देखना है कि आप एक्सप्लेन कैसा करते हो. तो आपको 5-10 मिनट आप ले लीजिएगा अपने टॉपिक को जस्ट एक्सप्लेन करके. मॉडल तो आप दिखाई दोगे, मॉडल तो सभी दिखा देंगे, सबको पता है, पर उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग अपने ख़राब मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, कुछ लोग बहुत अच्छे मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो और एक्सप्लेन करने का तरीका है कि पीपीटी को आप पहले से पढ़ के रखिएगा. अभी देखिए, लोकेश ने, जैसा कि अपने पंचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं, और पूरे बैच में सबसे ज़्यादा पंचुअल रहे हैं, आप लोग को भी पता है. तो इन्होंने देखो पूरा भी रेडी कर लिया है. तो भाई मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि चलो फिर देख लेंगे ही. ठीक है, मॉडल अभी नहीं दिखूंगा क्योंकि मैं अपना इंटरेस्ट कम नहीं करना चाह रहा हूँ. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इस मॉडल के लिए. बस पीपीटी भी देखूंगा.
क्योंकि आई वांट टू नो कि आप उसी समय मुझे तुरंत ही दिखाएंगे, बड़ी अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ कुछ बनाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बेहतर रिस्पांस किया हुआ है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना, अभी मत बताना, पहले देख लो। लेट्स सी, जिसने जिसने भी प्रोजेक्ट किया ये समझ लो कि आप तो जॉब के लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता, जॉब बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया, पहला बहुत अच्छा है, डाटा दे दिया, ठीक है। फिर इन ऑटो कैट पे ये दे दिया, ओके। फिर 2D ग्राउंड दे दिया, बहुत सुंदर। ये 3D ग्राउंड फ्लोर दे दिया, बहुत बढ़िया। प्लान दे दिया, ठीक है। सेकेंड फ्लोर दे दिया, सेकंड फ्लोर, टावर ए, टावर बी, टावर सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ कैपिटल हाइट का जैसा ही उठाया है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये इन्होंने फ्रंट व्यू उसका दिखा दिया है प्रोजेक्ट का, और इस व्यू के बाद ये व्यू दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद बेसमेंट दिखा दिया है, पार्क दिखा दिया है। देखो अभी प्रेजेंट अगर करेंगे तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बन सकती है। बेसमेंट दिखा दिया है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में यूनिक व्यू दिखा दिया है, ग्रेट, ठीक है। फिर नाइट व्यू दिखा दिया उसका, और नाइट व्यू के बाद टॉप व्यू दिखा दिया उसका, साउथ एलिवेशन दिखा दिया है, वेस्ट एलिवेशन, ओके, एक्सेलेंट। हर एक एलिवेशन दिखा दिया है, स्ट्रक्चर मॉडलिंग भी दिखा दिया है, एक्सेलेंट। बस एक काम कर दो इसमें, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वो लगा कि बेडरूम का ऑफिस इंटीरियर दिखा दिया है, बहुत सुंदर। एक काम कर दो, जो तुम फ्रंट पेज पे जो इमेज लाया है वो थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव है, तुम्हारा अंदर का तो बहुत अट्रैक्टिव है। तो या तो नाइट व्यू वाला एक पिक्चर ले लो, उसको पहले नंबर पेज पे लगा दो, या फिर क्या बोलते हैं, वो जो एक रेंडर निकाले हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये इसको लगा दो। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में कोई लोकेशन देखता है तो उसको पहला ही पॉइंट दिमाग में सेट होता है ना, तो ये लगा दो जो सबसे ऊपर है ना, वो थोड़ा उसका इमेज का कलर कम वो मजा थोड़ा दे रहा ब्लैक है। एंड व्हाइट टाइप में लिया है सर। हाँ, हल्का हो जा रहा है, मुझे समझ पर आ रहा है, पर वो ना अट्रैक्टिव नहीं हो रहा है, अंदर बड़ा अट्रैक्टिव है ना। तो इसके जगह उसको डालो। ओके सर। ओके, चलो बाकी लोग भी कल करेंगे, कल हम लोग एक एक करके प्रेजेंट करेंगे। सौम्यक रेडी हो गया है क्या प्रोजेक्ट? लगभग हो गया है। नहीं सर, बहुत बाकी है, 20% ही मैं बोल सकता है। कोशिश करो कि एटलीस्ट 50 तक आ जाओगे, तो प्रेजेंट करना रेडी कर लो, बाकी बाद में धीरे धीरे करते रहना। नहीं, प्रेजेंट करने लायक तो है सर, हाँ, प्रेजेंट कर बस सकता हूँ, कॉन्सेप्ट तो है। हाँ, तो बस प्रेजेंट करने लायक हो गया, बाकी धीरे धीरे करते रहना, ठीक है, चलेगा। बसवराज तुम्हारा कितना हुआ है? मेरा आर्किटेक्चर हो गया है सर, डिटेलिंग कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड, हो जाएगा, मतलब कल तक ना थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। और थोड़ा स्ट्रक्चर क्लिक करके वो डिटेलिंग करके शीट में कंपोज कर दूँगा। प्रणय तुम्हारा कितना हुआ है? तब हो जाएगा ना, एकदम तो कर ही लोगे अभी कल तक में। प्रणय तुम्हारा कितना हुआ है? हेलो सर। हाँ प्रणय। हाँ सर, मेरा प्रोजेक्ट है ना, हाँ, वो पर मतलब थोड़ा बाकी है, ऑनेस्ट सर, ऑनेस्टली बताऊँ ना तो बाकी है सर, पर कल तक मैं कुछ ना कुछ तो रेडी कर दूंगा। कुछ कर लो, ठीक हाँ। है। ऐसा होना चाहिए कि मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, यस सर, यस ठीक सर। है। जी। तो इसलिए कुछ ना कुछ करना, ठीक है, यस सर, यस सर। चलेगा। पॉल तुम्हारा तो रेडी हो गया होगा? हाँ सर, वो डिटेलिंग पे काम कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, मतलब पहुंच ही चुके हो लगभग, हाँ सर। ठीक है, चलेगा। खिजर तुमने कहाँ तक पहुंचा है? थोड़ा ही हुआ है सर। करो, देखो कितना लोग मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे बैच में, एक से बढ़ के एक लोग हैं, तो वो खुद ही दिख रहा है ना, यस और सर, यस। सबके काम एक से बढ़ के एक है। तो इसलिए तुम्हारे बैच में मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड भी है। और मुझे पता है, देखो क्या होता है, स्टार्ट से जब लोग चलते हैं तो लास्ट तक चलना सबके बस का नहीं होता है, और आप लोग उनमें से हैं जो लास्ट तक चलने के लिए रेडी हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी, और इसको एक स्ट्रेंथ बोलते हैं। हर ह्यूमन में एक प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन स्टार्ट में तो बड़ा जोश में, जैसे कि मैं 3 किलोमीटर की रनिंग कर रहा था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 2018 के आसपास बता रहा हूँ। 3 किलोमीटर की रनिंग में मेरे साथ जो लोग निकले, इतना तेज निकले, इतना तेज निकले, लगभग 1 किलोमीटर तक खूब स्पीड में गए। मैं उनकी स्पीड के बराबर नहीं गया, मैं आराम से चल रहा था, आराम से चल रहा था। 1 किलोमीटर के बाद देख रहा हूँ, जब मैं पहुँचा, क्योंकि मैं तो आराम से पहुँच रहा था, कोई हाथ बैठा कैसे बैठा हुआ है, कोई पानी पी रहा है, किसी की एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। मैं उसी इंजॉय के साथ चलता चला रहा था। कुछ लोग साथ तक आए, 1.5 किलोमीटर तक है, फिर धीरे धीरे लोग स्किप हो गए। मज़े की बात बताऊँ कि जब 2 किलोमीटर ख़त्म हुआ ना, उसके बाद भीड़ ही नहीं थी, ठीक
ठीक है, देर आर ओनली फ्यू पीपुल्स आर देयर, ठीक है, और जो कि 2 किलोमीटर के बाद रन कर रहे थे। और फिर अगर मैं बोलूँ कि मैं विनर था, तो मुझे इसलिए मैं बता रहा हूँ, खुशी भी है। तो विनर बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, रीज़न ये था कि 2 किलोमीटर के बाद कोई था ही नहीं, अपने मन से दौड़ रहे थे आराम से, ठीक है, तो विनिंग होना आसान है। तो कुल मिला के हम स्टार्ट तो बड़े जोश में लोग करते हैं कि चलो अपन सीखेंगे, पर तुम लोग हो जो वहाँ तक पहुँचाने की काबिलियत रख रहे हो, दैट्स ग्रेट। कल सब कोई जितना बन सकता है हम अपना बेस्ट देंगे। मुझे देखना है आपका प्रेजेंटेशन स्किल, देखना है डेडिकेशन, 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर इसके बाद इस चीज़ को पोर्टफोलियो में ऐड करा के इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे, आपको किसी भी तरीके से इंटरव्यू के अंदर एंट्री हो जाएगी, ठीक है। जो आज इतना ही रखेंगे। कोशिश करो कि रात में 2-3 घंटा जग जाओ, 3-4 घंटा। सर मैंने जो आपको वो बोलो। सर मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा था वो ईमेल का, वो कौन सी कंपनी है, मुझे तो उसका पता भी नहीं चला। नाम क्या था? नाम तो कंपनी का नहीं था सर, HR का था सिर्फ। चलो मैं देख के बताता हूँ रियल कंपनी है कि नहीं। एक तो कंसल्टेंसी का तुमने भेजा था, मैंने मना किया था ना। यस सर, वो नहीं पहले था। हाँ, जब कभी भी कंपनी आए जो मेरा ऑफिशियल मेल है, क्या है पता है आपको, admin@unixcivil.com या फिर आकाश पांडे@unixcivil.com। तो मेरा जब कभी भी ईमेल आईडी जाता है, अभी अपन तो स्टूडेंट के लिए वो उस पर तो चाहे जो करें, ठीक है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये होती है, उसमें 1 ही GB का स्टोरेज होता है और स्टूडेंट के लिए 1 GB सफिशिएंट नहीं होता है। जैसे अपना गुरुकुल है, तो गुरुकुल का क्या बोलते हैं 100 GB का स्टोरेज हमने खरीद रखा है जीमेल से, गूगल से, ठीक है। तो उसका जो भी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वो अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही मेल करती है। तो देखा करो कि वो कंपनी जो है रजिस्टर्ड मेल आईडी से किया है क्या, अगर किया है तो जेन्युइन है, नहीं किया तो फेक है, ठीक है। फेक मतलब मैक्सिमम चांस है फेक होने के, या फिर बहुत स्टार्टिंग वाली कंपनी है तो हो सकता है वो गलती हो जाए उससे, है ना। चलेगा। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, एक कॉन्फ्यूजन था सर, वो जो हाँ। कॉलम तो कॉम्प्रेशन मेंबर ही होगा ना सर? कॉलम कंप्रेशन मेंबर होगा, बीम टेंशन Flexural और कंप्रेशन member। दोनों होते नहीं, हाँ, टेंशन और कंप्रेशन दोनों होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर। यस सर। हाँ सर। बीम फ्लेक्सुरल मेंबर और कॉलम कंप्रेशन मेंबर। कॉम्प्रेशन मेंबर, ओके और सर। हाँ बीम में टेंशन किधर होता है और कंप्रेशन किधर होता है बताओ? हाँ सर, टेंशन तो बॉटम पे होता है और कॉम्प्रेशन टॉप पे, हाँ, वेरी बट गुड, एंड पे ऑपोजिट हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बॉटम और टॉप को ध्यान रखना चाहिए। चलो ओके कल सर। तक कोशिश करो पॉल, बढ़िया प्रेजेंटेशन देना, एकदम दिल खुश हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक एक लोगों को प्रेजेंटेशन अलग अलग करके यूट्यूब पे दिखाऊं कि पॉल ने ये प्रेजेंट किया हुआ है, और लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि पॉल ने ये प्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए हाँ सर, मेरा भी तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन सर अचानक से ऐसा माइग्रेन का इशू हो गया ना सर, ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ वीडियो वॉच, यही प्रॉब्लम है। नहीं, कोशिश करना। हम अब इसके माइग्रेन का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं खुद उससे बहुत सफ़र कर चुका हूँ, तो मुझे उसका दर्द पता है, बहुत बुरा दर्द होता है, ठीक है। हाँ मुझे तो सर। पहले पता ही नहीं था कि माइग्रेन होता क्या है, ठीक है। और मैं ऐसे ही पकड़ लेता सिर में, मैं ऐसे कि सुबह जॉब करने वाला, रात को भी जॉब करने वाला, मैं सोचा यार अचानक से मुझे हो क्या गया। मैंने अपने मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी अभी कैसे गाँव में जानते हो, लगता है तुमको नज़र लग गई है, ठीक है। नज़र हाँ के सर, पीछे डिस्प्ले के साइड दिखा नहीं जाता, मैंने पूरा बहुत दिमाग गंदा हो हाँ जाता है, सर। ठीक है। उस केस से फिर मैंने सच बताऊँ ना, मैंने उसके बाद पता है क्या किया, मैंने कहा कि अगर अभी नहीं ठीक हुआ तो कुछ ऐसा काम करूंगा जिसमें लैपटॉप को ना यूज करना पड़े, ऐसा सोचने लगा था, ठीक है। तो फिर एक डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बताया इसको माइग्रेन बोलते हैं, बिलीव करो तब मुझे पता चला कि माइग्रेन है, ठीक है। तो अभी ऐसे मतलब होता है, कुछ लोगों को किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं होता ना। अभी हम एक गए थे रिलेटिव के यहाँ, तो पता है इनको सब बताया कि ये टेस्ट करवाया है, टेस्ट करवाया। अब उनको लगा कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इनको तो पता ही होगा टेस्ट के बारे में। फिर मैंने लास्ट में उनसे पूछा, मैंने कहा ये टेस्ट करवाया क्यों है और किस चीज़ का टेस्ट है? तो पंडित जी तो मुझे देखे, फिर बोले आपको नहीं पता ये टेस्ट के बारे में? मैंने कहा नहीं। तो वो सिंपल कोई हार्ट का टेस्ट, कोई किसका टेस्ट, अब उसका मेरे को क्या फर्क आता है कि अपन तो सिविल इंजीनियरिंग जानते हैं केवल, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा हमारा इंटरेस्ट, जो भी आप हमारा नॉलेज देखते हो, वो नॉलेज केवल सिविल इंजीनियरिंग का है, दूसरी चीज़ों के बारे में आप बताइए खुद ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना जितना हो पाएगा, ठीक है। हाँ सर, करता हूँ सर। ठीक है, होता है। चलेगा, ठीक है, करो। उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, कल से मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रेजेंटेशन अच्छा से कर लिए, सबका सेपरेट प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे, उसके बाद उसको तो डेफिनेटली करेंगे। और कल से ही आपको मैं अलग से ओपनिंग्स देने लगूंगा, और उन ओपनिंग्स पर ज़बरदस्ती आपसे अप्लाई करवाऊंगा, जिससे कि मैक्सिमम चांस रहे कि इस महीने के अंत तक आपके पास 2-3 ऑफर लेटर ज़रूर है। ये मेरी इच्छा है।
आप करो या मत करो जॉब, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि आपके पास ऑफर लेटर है कि नहीं, ठीक है। और कंपनी में जाके वहाँ इंटरव्यू क्या पूछा, ये बस यही इंपॉर्टेंट है कि यार वो क्या अपनी पढ़ाई में से आया है कि बाहर से आया हुआ है, ठीक है। तो चलो कल प्रेजेंटेशन पहले दो, फिर आगे हम देखते हैं कि कौन कहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। चलेगा, चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे विद प्रेजेंटेशन। मैं रेडी होके आऊँगा, आप लोग भी रेडी होके आना, चलेगा।